السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، ان خوبصورت نظاروں کے ساتھ ہم اس وقت آپ کو لے کے جا رہے ہیں ایک تدفین، ایک ایسی تدفین جس کے متعلق آپ 2-3 دن پہلے سے خبریں سن رہے ہیں۔ ہمارے ایک بہت ہی پیارے عزیزم افتخار احمد، جن کو پیار سے مکھن کہا جاتا تھا، اور وہ محمود جولرز ربوہ والے کے بیٹے تھے۔ وہ پہلے ہمبرگ میں تھے، پھر وہاں سے یہاں اوفنباخ میں آ گئے، جس شہر کے یہ نظارے آپ دیکھ رہے ہیں۔ چند دن قبل تک وہ انہی نظاروں کو انجوائے کر رہے تھے، انہی گلیوں، انہی سڑکوں پہ وہ گھوم پھر رہے تھے، اور یہ رستے تھے ان کے، اسی علاقے میں ان کا گھر تھا، اور یہی سڑکوں پہ وہ اپنی روز و بشر یا اپنی روزی کمانے کے لیے نکلتے تھے۔ یہ سارا اوفنباخ کے نظارے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت شہر ہے، کتنا خوبصورت موسم ہے، لیکن صرف ایک فرد جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اسی رستے میں آپ کو وہ مسجد کی طرف جاتا رستہ بھی نظر آئے گا، جہاں انہوں نے ڈیوٹی کر کے ضیافت میں اپنا ایک نام بنایا، جماعت کا ہر فرد ان کو جانتا ہے۔ اور آج جب ہم تدفین کے لیے جا رہے ہیں تو خیال آ رہا تھا کہ جتنا بڑا جنازہ ہوتا ہے، یہ دیکھیں اب ہم پہنچ گئے ہیں وہاں تھوڑا سا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سب کے علم میں ہے کہ جب بھی کوئی شخص اس دنیا سے اللہ تعالیٰ کی منشاء کے مطابق چلا جاتا ہے تو اس کی خوبیاں جو ہیں وہ ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے اور وہ بیان کرنی چاہیے، تاکہ جو بھی سنے اس کے دل میں دعا کی تحریک پیدا ہو۔ ہمارے ساتھ اس وقت افتخار صاحب، جن کا آج تدفین ہے یہاں پہ اوفنباخ میں، ان کے عزیز ہیں، وہ خود اپنا تعارف اپنا تھوڑا تعارف کروا دیں۔ جی، میرا نام رانا منصور احمد ہے اور میں بیت الفتوح لنڈن سے آیا ہوں۔ یہ میرے بردر ان لا تھے، بردر ان لا سمجھ لیں، بردر ہی سمجھ لیں، تو یہ میرے لیے بہت ہی خدمت گزار اور بڑا ہی خیال رکھنے والے، مہمان نوازی تو ان کے پر بہت، میں الفاظ ایسے نہیں ہیں کہ میں بیان کر سکوں۔ جس نے بھی بتایا نا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے بچوں پر خاص فضل فرمائے، بس میری تو یہی دعا ہے۔ بہت شکریہ۔ خدمت کے لحاظ سے، جماعتی لحاظ سے، اور بہت ہی اچھا انسان تھا۔ بہت شکریہ جناب، شکریہ۔ لیکن دوستو، جس طرح میں نے بتایا تھا نا کہ کوئی بھی شخص جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کی اچھائیاں جو ہیں وہ ہمیشہ یاد کر کے اس کے لیے دعا کا جو موقع پیدا کرنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ اس وقت ایک دوست موجود ہیں، وہ اپنا تعارف بھی کروائیں گے اور پھر چند الفاظ افتخار صاحب کے متعلق۔ السلام علیکم، میرا نام طارق محمود ہے، میں ربوہ دارالسعودہ شمالی سے میرا تعلق ہے۔ تو افتخار میرے تائے کے بیٹے کا بیٹا، یعنی کہ میرا بھتیجا لگتا تھا۔ بہت مخلص انسان تھا جماعت کے لیے۔ جب کا میں نے اپنا ہوش سنبھالا ہے، اس نے بہت زیادہ جماعت کی خدمت کی ہے اور ہر وقت جماعت کی خدمت کے لیے تیار رہتا تھا۔ تو ابھی یہ بہت افسوس ہوا ہے اس کی وفات کا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اچھے لوگ یہ خدا کو پسند ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور نیکیوں کے لیے کام کرنے کے لیے توفیق دے۔ آمین آمین۔ بہت شکریہ طارق صاحب۔ بدلنا ہم طور ہمارے ہیں وہی، نہ وہ تم بدلے نہ ہم طور ہمارے ہیں وہی، فاصلے بڑھ گئے پر قرب تو سارے ہیں وہی، فاصلے بڑھ گئے پر قرب تو سارے ہیں وہی،
बदले ना हम तार हमारे कभी आके देखो तो सही बस में जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपके इल्म में है कि जब भी कोई शख्स इस दुनिया से रवाना होता है तो उसके मतलब जो अच्छी बातें हैं वो हम हमेशा बयान करते हैं। हमारे साथ इस वक्त एक मुरब्बी सिलसिला जो जर्मनी में खिदमत की तौफीक पा रहे हैं वो हैं, उनसे पूछते हैं मुझसे थोड़ा तारुफ करवा दें फिर साथ में। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। खालसा तारिक मुज़फ़्फ़र है और जो ये हमारे अज़ीज़ों में से थे, तो अल्लाह ताला के फज़ल से बड़ी खिदमत करने वाले शुरू से हम देखते आए हैं। जब हम बच्चे भी होते थे तो हर जगह पर जहाँ पर हाथ के साथ खिदमत दरकार होती थी, ऐसे काम जो जिनके लिए इंसान को अपने नफ्स को भी कुर्बान करना पड़ता है, इन चीज़ों में अल्लाह ताला ने ख़ास तौफ़ीक़ अता फरमाई। हर जगह पर इन्होंने नुमायाँ तौर पर आगे होकर खिदमत की, जमात में भी नज़र आए, घरों में भी, फैमिली में भी नज़र आए जगह पर। तो ये तो बहुत सी खूबियों में से एक बहुत नुमायाँ खूबी है जो हमें इनकी देखने को हमेशा मिलती रही थी। हमारी ये दुआ है अल्लाह ताला इनकी नीतियों को बेहतरीन तौर पर उनका अजर और बदला उस जहाँ में भी अता करे। यहाँ पे पीछे उनके जो पसमंदगान हैं, उनके बच्चे, उनके औलाद हैं, अल्लाह ताला उनको भी इसी तरह से तौफीक दे अपने वालिद के नक्श कदम पर चलते हुए ज़िंदगी को जिंदा रखने की। आपके इल्म में कोई है कोई हदीस ऐसी जिसमें जब कोई शख्स फौत होता है तो उसके मुतल्लिक़ कोई जिक्र है? बिल्कुल रसूल के वसल्लम ने फरमाया हुआ है कि बल्कि ऐसे एक दो वाक़यात भी हैं कि जब कोई शख्स फौत होता है, जैसे आप ये कह रहे हैं, तो उस फौतशुदा शख्स के मुताबिक जो अमूमी राय उनके जानने वाले या इर्द गिर्द के माहौल में पैदा हो चुकी होती है, तो खुदा ताला भी देखें एक ऐसा जज है, एक ऐसा हाकिम है जो ऐसी राय को कहता है कि इसी तरह से फिर होगा और उसे कबूल कर लेते हैं। और इनके मुतालिक ये सारों में ये तस्वीर है। और आज जो इतने दोस्त रहबाब ख़ानदान में से जमात में से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और इनको आखिरी दफ़ा अलविदा करने के लिए कि ये बहुत से खूबियों के मालिक शख्स थे और ऐसे लोग रसूल की बिशारत है, अल्लाह ताला उससे बेहतरीन सलूक करता है और करेगा इंशाअल्लाह। बहरहाल हमारे लिए एक नमूना थे, वो चले गए और अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे नेकियों को ज़िंदा रखने की और आगे हमें इसे दारुल अमल में अपने इम्तिहानात पास करने हैं। आमीन, बहुत शुक्रिया। वही जल से वही रौनक, वही जल से रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, वो जो किसी भी शख्स का इस दुनिया से जब रवानगी का वक्त आता तो उसके बाद उनकी जो अच्छी बातें हैं ना उनका ज़िक्र खैर हम करते हैं। आज हमारे साथ महमूद साहब हैं, ये अपने थोड़ा तारुफ भी करवा देंगे। माशाल्लाह इनको जमाती खिदमत की भी बहुत लंबे अरसा से तौफीक मिल रही है। सदर खुदामुल अहमदिया रहे हैं काफ़ी अर्सा। आपने थोड़ा सा बताएँगे, अपना थोड़ा तारुफ करवा दें और फिर ये है कि इनका जो इफ्तिखार साहब की जो वफ़ात, इनसे जो आपका जितना तल्लुक़ रहा, कोई अच्छी बातें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज हमारे इंतहाई प्यारे और इंतहाई मुखलिस और इंतहाई मोहब्बत करने वाले भाई राना इफ्तिखार साहब हमसे बिछड़ गए हैं। अल्लाह ताला का जो वादा था जो पूरा हुआ, हम उसकी रज़ा पे राज़ी हैं। हमारे भाई राना इफ्तिखार साहब जो हैं बहुत मोहब्बत करने वाली शख्सियत थे, बहुत ज़्यादा खिदमत करने वाले थे और हम में से अक्सर ये गवाही देते हैं कि ये उन लोगों में से थे जिन्होंने हमेशा दीन की खिदमत को अपनी दुनियावी तमाम मसरूफियात के ऊपर मुकद्दम रखा।
24 घंटे खिदमत करने वाले थे। ज़ियाफ़त की टीम में नुमाया मुकाम था, चाहे वो जमात का कोई इवेंट हो, चाहे मुकामी जमात का हो, अंसारुल्लाह मरकज़िया का कोई इवेंट हो, लजना के प्रोग्राम हो, हर जगह पहुँचते थे। और हर शख्स की कुछ नुमाया खसूसियात भी होती हैं उसकी खिदमत में। इनकी जो सबसे नुमाया खसूसियत थी वो ये थी कि अल्लाह ताला ने इनको बहुत ज़्यादा हुस्न सलीका अता किया हुआ था। हमारे जो बड़े अहम और बड़े प्रोग्राम्स होते थे जहाँ ओफन बाग में, जिसमें डिग्निटीज़ और बड़े बड़े सियासतदान इस तरह के लोग आते थे, तो बहुत सलीके के साथ अपनी टीम को साथ लेके तो खिदमत में पहुंचा करते थे। एक और चीज़ जो मैंने बड़ी नुमाया इनमें देखी कि जो हमारे खुदाम हैं, नौजवान हैं, उनकी भी बहुत टीमें इनके साथ काम करती थी और उनसे बड़े मोहब्बत करते थे। और उनको यानी ये नहीं कि वो खिदमत से कतराएँ, बल्कि इनकी वजह से वो दौड़े चले आते थे जब भी उनको बुलाया जाता था। बहुत मोहब्बत करने वाले थे और बच्चों में बहुत मकबूल थे खुदाम में ना। और जलसे के मुझे अयाम याद हैं, ना कपड़ों को देखना, बहुत वेल ड्रेस हो के तो सियाफत का काम करना आसान काम नहीं है। हमने इनको हमेशा देखा है, जलसे पे भी देखा है, मुकामी भी देखा है। 2 दिन पहले 3 दिन पहले हमारा इंतखाब था यहाँ पे मुकामी जमात में, तो उसमें भी अल्लाह ताला ने इनको वफा से चंद दिन पहले खिदमत की तौफीक दी और हमेशा खिदमत में नुमाया रहे हैं। तो अल्लाह ताला अपने जवार रहमत को में इनको जगह दे और जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला नुमाया मुकाम इनको अता करे, अपने प्यारों में अल्लाह ताला इनको रखे। हमारी इनके हक़ में दुआ है और इनके ख़ानदान के लिए, खुसूसन इनके बच्चों और उनकी अहलिया के लिए कि अल्लाह ताला ख़ुद उनका कफ़ील और हामी नासिर हो। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। जी दोस्तों, आज राना इफ्तिखार अहमद जो बचपन में दारुल फजल रबवा में हमारे साथ खेलता रहा और मुख्तलिफ़ जमाती कामों में भी उसने वहाँ ड्यूटी दी। और बाकी ये है कि क्या कहते हैं, इंसान जो भी इस दुनिया में आया उसने इस दुनिया में आने के बाद इस दुनिया से एक दिन चला जाना है। लेकिन जवानी के आलम में 50 की एज में जब कोई इंसान अचानक इस दुनिया से चला जाता है तो उसका जो गम है, जो दुख है, वो जो करीबी दोस्त अजीज़ व अकारब हैं वो तो महसूस करते ही हैं, लेकिन जो उनका करीबी रिश्तेदार, बीवी, बच्चे, माँ बाप या कज़न या अंकल, उनका जो है वो बयान करना बड़ा मुश्किल होता है। आज इस वक्त हम उस इफ्तिखार की इस दुनिया से रवानगी को मुकम्मल कवर करने के बाद वापसी पे इस वक्त जो ओफन बाग के अंदर से राइन माइन गुजरती है, वहाँ किनारे पे खड़े हैं। बहुत ही खूबसूरत मौसम है, धूप निकली हुई है। तो मैंने कहा चलें इसके साथ हल्की वाक करते करते थोड़ा उसका भी जिक्र कर लें। जितने दोस्तों से मुलाकात हुई, जिसने भी खराज तहसीन पेश किया, उनके अल्फाज सुन के जो मेरे इल्म में नहीं था, उससे भी ज़्यादा जानने का मौका मिला कि इफ्तिखार ने बज़ाहिर यही लगता है आम लोगों की तरह, लेकिन जब कोई इंसान चला जाता है तो उसके जाने के बाद, ख़ास तौर पे जाने के मौका पे जितने लोग जनाजे में शिरकत करते हैं या तदफीन में, उससे अंदाज़ा होता है कि वो इंसान कितनी खूबियों का मालिक था। और ये जगह जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, कोई बात नहीं कि अक्सर इफ्तिखार को यहाँ आके इस किनारे पे सैर करने का मौका मिला हो, क्योंकि ये ओफन बाग में से गुजरता है और यहीं उसकी रहाइश रही। पहले वो हमबर्ग में था, फिर वो उसने म्यूलहाइम में घर लिया, ओफन बाग में रहा। तो ये जो इलाका आप देख रहे हैं, ये जो जवान आप देखें एंजॉय कर रहे हैं धूप को, क्योंकि आगे गर्मियाँ शुरू होने वाली हैं, तो लोग इस तरह निकलते हैं बाहर एंजॉय करने के लिए। और आप ये देख सकते हैं कैसे ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। इसी तरह हर इंसान जो सेहतमंद होता है वो अपने अच्छे औकात को फैमिली के साथ या मुख्तलिफ दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए बाहर निकलता है। मैंने कहा कि इधर से गुज़र रहे हैं तो इस मुकाम को भी दिखा दें वो लोग जो कभी यहाँ नहीं आए, इस हवाले से कि जब इन गलियों या इन बाज़ारों या इन खूबसूरत मकामात से हम गुज़रेंगे तो ज़हन में ये ज़रूर आएगा कि कभी हमारा एक प्यारा यहाँ भी आया करता होगा। बहरहाल यही ज़िंदगी की हकीकत है। आज जो सैकड़ों
या मैं कहूँगा लोग आपने देखा होगा जनाजे में, एक ऐसी हकीकत जिससे इंसान अमूमन आंखें चुराता है या भूला रहता है, वो ये है कि इनमें से जो आज लोग जनाजे में शिरकत के लिए आए, एक बंदे का नेक्स्ट नंबर है, लेकिन ये खुदा ने अपने पास रखा है इसका इल्म कि किसका है। इसी तरह फिर उस की बारी पे लोग इसी तरह आएंगे, तदफीन में शामिल होंगे, दुआएं देंगे, लेकिन ये सिलसिला हमेशा आगे चला रहता है। खुदा ताला ने ये सिस्टम इस तरह बनाया हुआ है कि ये जो वक़्त का जो मरहम है ना, वक़्त का मरहम अगर ये ना होता और भूलने का, तो फिर ये दुनिया रुक जाती, ये दुनिया के जो काम हैं ये रुक जाते। अल्लाह ताला ने एक ऐसा निज़ाम बना दिया कि जब भी कोई प्यारा यहाँ से जाता है तो उसको उस वक्त एक मौके पे बहुत तकलीफ़ के साथ सब लोग अलविदा करते हैं और अपना वो अंजाम को याद करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता भूलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अगर वो भूले नहीं, इसी वक्त को या इसी लम्हात को ऊपर सवार किए रखें, तो फिर ये दुनिया के जो काम हैं वो रुक जाएँ। बहरहाल अल्लाह ताला सबको अच्छी और जमात की खिदमत करते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे, क्योंकि यही काम हैं जिनके बाद जो लोग हैं वो उनको दुआ के लिए या फिर मुख में याद रखते हैं। अल्लाह